Discharged on 15th of February and advised from 15th February to 27th February for house quarantine. In that period, he was house quarantine. 2 days and days he gave. Because our CP's letter, he suggested regarding collection of money and everything. The Honorable Home Minister, around the mid-February, called Sri Vajay at his official residence and some instructions were given. So it is absolutely clear Mr. Deshmukh was in Nagpur in this particular hospital. Now, second issue, what CP is saying, he was briefed same day by that low-level officer, such and such conversation was between him and Home Minister. Same day, he mentioned same day, Vijay was briefed by, so-called briefed by Home Minister, same day, that is former CP's version. Now, another issue which I just think this is not anybody raised is that March 3rd week or 2nd week, he mentioned in his letter he has briefed CM, Deputy CM and me. And I think it is correct that he is like me. I don't know about CM and Deputy CM. I asked them, they said yes, but he met me, that is very important. So this was in 2nd week of March. See, suppose in mid-February, CP got this type of information of March for whole month. This is important issue. It was his duty, at least he should say something in writing, such and such things to certain record. But that is not done. He has disclosed all these things when he was about to transfer and he transfers. But all these things, I am not going in detail, it's not my job. Ultimately, if they inquire, they will go in detail. Yesterday I also suggested, for the sake of the inquiry, somebody should be senior most officer and whose reputation is above all should take this responsibility. And I suggested, this is suggestion. I have not discussed, I also said I have not talked. Name of Sri Rivero. But Rivero has taken public stand. He is not going to take any responsibility so that it is not there. Now for me, important issue is whatever this conversation, allegation, everything that Hussein invest, that will come what is the truth. But from my side, what I honestly feel, important issue is what was the main case? Main case was certain items are kept in particular vehicle, somewhat near the house of Sri Ambani. Then, of course, police must have started investigating who has kept these vehicles, who owns these vehicles. And it looks like that
they come to conclusion, or at least they got the information, may not the conclusion, but the information, this particular jeep was in the custody of one, they say, Hiren. And one fine morning we read that Hiren was assassinated. Now the investigation might have started. What is the role of Hiren in this jeep? Is it correct that jeep was with him for many months? Is it correct that his jeep was taken from him by some police officer? And one fine morning we read, Hiren is no more. Now, 8 years only, as yesterday or today announced, they have arrested 2 persons. In connection with assassination of Hiren. So I think तो बात साफ हो रही है कि हिरेन की हत्या किसने की? हिरेन की हत्या करने वाले पुलिस को एटीएस को जो लगते हैं ऐसे लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया। अभी बात आएगी आगे इन्वेस्टिगेशन में कि why he has done this, these 2 gentlemen have done this, whether somebody has told him. That is in investigation process, facts will come. Today, tomorrow, day after tomorrow, can't say, but something will happen. But I am happy about one thing. The main case was not the allegation or anything from CP. Main case was certain material near Mr. Ambani's house, that was kept in jeep, then the jeep was the custody of so and so, and ultimately the jeep was claiming he was the owner of on his possession, he was assassinated, and ATS Bombay had reached and arrested those who were involved in assassination. So, real case was that, and I think Bombay ATS is going on correct direction. So just to divert this entire investigation, widely some people might be saying about something happened between him and Home Minister. Home Minister was asking such and such thing. Achha, when they made a statement, the Home Minister was asking, is there any reason, is there any actually cash transaction was given, any allegation? Just vague allegation has been made, and I honestly think the investigation which is reaching a opinion, and now the truth is coming. सर, केंद्र सरकार के मंत्री हंगामा कर रहे हैं और आरोप आप सर Yeah, in fact, we got all these information. When we got that Mr. Deshmukh was hospitalized, and that's why the allegation was made exactly in the same period. And when he was in hospital, it established there is a hospital certificate, and all the government record also says that the entire 3 weeks he was not involved. He was in Nagpur, that is his hometown. And that's why in such situation, person doesn't arrest.
सर केंद्र सरकार कह रही है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं प्रकाश जावड़ेकर और केंद्र सरकार। सदन में हंगामा हो रहा है, तो क्या आप अनिल देशमुख के लिए वाउच करेंगे सर कि वो पाक साफ है और इसमें कोई सरकार का मंत्री लिप्त नहीं है? मैंने सीधी बात कल भी कही थी कि सरकार के ऊपर कुछ असर नहीं होगा। एक दूसरी जिन मिनिस्टर के बारे में एलिगेशन था, ये एलिगेशन जिस मिनिस्टर के बारे में था, इस मिनिस्टर की उस समय की स्थिति क्या होती ये साफ हो गया है। और ऐसी परिस्थिति में उनको इस्तीफा मांगना, बिकॉज yesterday I myself said it looks like a serious thing, but when I saw all the documents, I saw all the program, and I am convinced that this particular affair he was in Nagpur, so question doesn't arise. दबाव टाकण्यात येत आहे का अशा पद्धतीने पत्र लीक करून महाराष्ट्र सरकार किंवा गृहमंत्र्यांना अडचणी टाकणं, सरकारला अडचण टाकणं हे केलं जाते का राजकीय षडयंत्र वाटतं? इसी बेसिकली जो कुछ देखा गया, जो फॉल्स एलिगेशन या कैश एलिगेशन जो किए इस बारे में, अल्टीमेटली मैंने कल कहा था कि इज द प्रोगेटिव ऑफ द चीफ मिनिस्टर। कुछ इन्वेस्टिगेट करना तो इन्वेस्टिगेट करो, कुछ एक्शन लेना है या कुछ एक्शन ले लो, जो कुछ करना है वो कर सकते हैं, ये मेरा काम नहीं। बीजेपी ये भी कह रही है कि अगर जब तक इन्वेस्टिगेशन होती है, फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, तब तक अनिल देशमुख को स्टेप डाउन करना चाहिए, क्योंकि उनके होम मिनिस्टर रहते एक फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन कैसे हो सकती है? सीधी बात ये साफ हो गई कि जिस समय में ये एलिगेशन किया था वो फिर अनिल देशमुख हॉस्पिटलाइज थे। ये बात साफ होने के बाद ऐसे जो कुछ डिमांड है, इस डिमांड को कोई ताकत नहीं रही। सर सेना का कहना है की तुम्ही अर्ध सत्य सांगत आहात, तुम्ही पूर्ण सत्य सांगत नाही। इतकंच नाही तर देवेंद्र फडणवीस यांनी आरोप केलाय की ह्या आधी पण 2 पोलीस अधिकाऱ्यांनी रिपोर्ट दिले ते आपण लपवतात, हे तुमच्यावरच आरोप केले। माझं भाग्य है कि उन्होंने मैं इसमें था ऐसे नहीं कहा। उन्होंने जो कहा ये हाफ सच्चाई, ये बात करेक्ट नहीं। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास कल थी आज इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ गई, वो भी आ गई। मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे सेंसिटिव इशू पर जहाँ इन्वेस्टिगेशन चालू है, इसमें ज़्यादा हम लोगों ने बोलना ये ठीक बात है। शिवसेना का कहना है परमवीर सिंह जो है वो बीजेपी के आदमी हैं और उन्होंने एलिगेशन लगाया है। एनसीपी का इस पर क्या कहना है, रिएक्शन? दूसरा आपका क्या अभी तक सीएम साहब से कोई बातचीत हुई है? सीएम साहब अभी तक क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं इस पूरे मामले में? कुछ पार्टी में थे, आपका कोई रिएक्शन नहीं है? एनसीपी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं है परमवीर सिंह के इशू? मैंने कभी देखा ना, मैं इनको कई सालों से देखता था, इनके बारे में कुछ बातें, लेकिन कल सर मगर ये पॉलिटिकल पार्टी में है, ऐसे मैंने कभी देखा नहीं। एक एक करके पूछो यार। आपने कहा कि मुझे डॉक्यूमेंट मिल गए और मुझे कंफर्म है कि वो नागपुर में थे। इस सारे संबंध में क्या उद्धव ठाकरे साहब से आपकी बातचीत हो रही है? खुद मुख्यमंत्री है, एलिगेशन उन्हीं पे लग रहा है, महाराष्ट्र की सरकार चल रही, क्या उनसे कोई बातचीत हो रही? मैंने कल ही इनसे बात की थी, मैंने आपको कहा था कि तो सर अभी तक बोलने दो यार, जवाब दे दो यार। की थी और उनको अभी जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो उनके पास हम भेजेंगे और उनके सामने सच्चाई आई भी हो सकती है इससे पहले, वो मुझे मालूम है। देशमुख इस्तीफा नहीं देंगे, ये तय है। सवाल है कि जो एलिगेशन किया है, ये एलिगेशन में सच्चाई नहीं, एलिगेशन का जो समय है वो समय में वो नहीं कर हुए, वो नागपुर में हॉस्पिटल थे। ये बात साफ होने के बाद फिर इसमें और कोई मतलब आपको लगता है कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होने की जरूरत है? सर कोई इन्वेस्टिगेशन कराने की जरूरत नहीं है आपको लगता है? सर एक ये कि जैसे आप कह रहे हैं कि देशमुख साहब हॉस्पिटल में थे, कोविड हुआ था उन्हें, तो क्या एनसीपी अनिल देशमुख को क्लीन चिट दे रही है? दूसरा सवाल ये कि अगर जांच चल रही है और गृह मंत्री वो बने रहेंगे तो जांच भी तो प्रभावित हो सकती है सर। नहीं, जांच अभी जांच की बात इस बारे में तय करना है सीएम साहब को। मैंने कल भी कहा था, अभी जांच एक्चुअली शुरू नहीं। कल जो आपने कल सीरियस कुछ एलिगेशन करने के बाद मैंने खुद सुझाव दिया था, जैसे आदमी ने इन्वेस्टिगेट करना चाहिए
मगर ये बात जब साफ हो गई सामने कि जो समय उस समय वो नहीं थे, ये बात साफ होने के बाद ये जांच करना या न करना हमारी अभी जीवन नहीं है। जीवन तो सीएम साहब को हो सकती है, तो उनका अधिकार है। गृहमंत्री पदावरती असताना अनिल देशमुख यांची चौकशी कशी करतायत? अनिल देशमुख यांचा राजीनामा घ्यायला हवा. त्याचा पॉईंट आता चौकशीचा इश्यू कुठं आला की जे ॲलिगेशन होतं तेच खरं नाही हे सिद्ध दिसतंय आता. सर परमवीर सिंगांच्या पत्राचा पवार साहेब एलिगेशन भी आपने लगाया है कि एटीएस की प्रोब राइट डायरेक्शन में जा रही थी और शायद कहीं और नाम सामने आते, इसीलिए जो है डाइवर्ट किया गया. अभी अगर उस पर पहला केस देखा जाए जब एक्सप्लोजिव मिले थे उस केस में भी अब तक कुछ नहीं हुआ है. तो सर क्या आपको लगता है कि जस्ट टू डाइवर्ट दी अटेंशन ये किया गया है, चाहे जेलेटिन स्टिक्स वाला हो अंबानी के घर के बाहर और चाहे मनसुख हिरेन की मौत का मामला हो? सर मालूम नहीं, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में मेरा एटीएस पर भरोसा है. एटीएस जो कोई सच्चाई है वो सामने निकलेगी. ऐसे समय मेरे जैसे लोगों ने कुछ कमेंट करना ये ठीक नहीं कि जिसका गलत असर इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस पर होगा, और इसलिए इस बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता. कमलनाथ आपल्याला काल भेटले, काँग्रेस बरोबर आपली कोण चर्चा. भेटले? कमलनाथ काल आलेले आपल्याला भेटले. कमलनाथ काँग्रेसचे नेते. नाही, ते दुसऱ्या कामाचं पवार साहेब सगळ्यात महत्वाचं नाही, कमलनाथची या प्रश्नावर चर्चा सुद्धा झाली नाही. त्यांचं कारण नाही, मध्य प्रदेशमधल्या काही प्रश्नासाठी ते माझ्याकडे आले. परमवीर सिंगांच्या कोणाची लेटरचा चर्चा नाही. पवार साहेब परमवीर सिंग यांच्या पत्राचा मुद्दा जर आपण बाजूला ठेवला तरीही अनिल देशमुख हे गृहमंत्री असताना सचिन वाझे आणि इतरही पोलीस अधिकाऱ्यांचा त्या जिलेटिनच्या कारमध्ये इन्व्हॉल्वमेंट आहे, याची नैतिक जबाबदारी अनिल देशमुखांनी स्वीकारावी असं नाही वाटत का? त्यांचा पोलीस खात्यावरती वचक नाही असं माझ्या वाटत? मते याची जबाबदारी ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बघतो त्याची असते. पवार सर, आपकी पार्टी में दो स्टैंडर्ड है. पवार सर, आपकी पार्टी में दो स्टैंडर्ड है. आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पे जिम्मेदारी सौंपी. आपके तमाम जो नेता, कल जयंत पाटिल ने भी कहा कि इस्तीफा नहीं होगा, तो एनसीपी के अंदर दो स्टैंड क्यों? राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पे आज मैं वही कह रहा हूँ. कल क्योंकि जयंत पाटिल कह रहे हैं कि इस्तीफा नहीं अरे होगा. सुनिए, कल हो कह देते, मैं आज कल नहीं कहता था, आज मैं कह रहा हूँ. क्योंकि जयंत पाटिल मुंबई से आए थे, उनके पास ज़्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन थी, या वो इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं थी, और इसलिए मैंने कल ये सीरियस इशू है और इसलिए इस बारे में मैंने कुछ कहा नहीं था. और आज आई एम एब्सोल्युटली clear after getting information of Nagpur hospital, allegation which is made against Mr. Deshmukh is not correct. सर मीटिंग तो 4 मार्च को हुआ था, इस्तीफा नहीं होगा सर. इसमें उत्पन्न पार्टी थे और सब लोग थे. 4 मार्च का मीटिंग जो लेटर है हाँ, जो परमवीर सिंह ने लिखा है उसमें 4 मार्च को मीटिंग हुई थी और वो 27 तारीख को ठीक हो गई थी. he mentioned in Sir, there are two references. mid-February. मीटिंग इन विच मनी was discussed. He mentioned mid-February, same day, concerned officer briefed him that he has said from mid-February till 16 मार्च तक वो चुप ही बैठे थे. सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही थी. ये इन्होंने लेटर में इतनी सारी बातें लिखी, इन्होंने ये भी लिखा है that I went to the chief minister on a certain evening at Varsha. I briefed him about what was going on. He says he briefed you as well. I want to ask you, Pawar sir, that if he came and he spoke to you, maybe you may not want to share what he told you, but did you make the effort to call the home minister, check with him what was going on, and you have agreed to the fact that he came and met you, sir? What did you do after that, Pawar sir? He mentioned same thing to me also. I don't hide. Okay. Then CP has briefed me also. He made allegation also, and definitely whatever the time schedule which he has given and actual information as on today, there is a vast difference, and that's why question doesn't arise.
to think anything about Mr. Deshmukh. Sir, one question which has not been asked about the political conspiracy. क्या आपको लगता है ये पूरा मसला जो है सियासी साजिश का है? क्योंकि आपने कहा कि बार बार मामले को भटकाने की कोशिश हो रही है। महाराष्ट्र आघाड़ी सरकार एक तरह से चुनौती है नरेंद्र मोदी सरकार के लिए भी बड़ी, तो क्या कहीं पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है? कहा था कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और इन लोगों ने कुछ स्टेटमेंट किए या कुछ डिमांड की। अपोजिशन का नेता का ये काम है, इस बारे में कुछ कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। ये कल मैंने कहा था, आज भी मेरा कहना वही है। राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी ते प्रामुख्याने सतत वारंवार करतात। आज प्रकाश आंबेडकर सर राजभवनावर जाऊन राष्ट्रपती राजवटीची मागणी केली। साधारणतः ज्यांच्या पाठीशी लोक आहेत, संसदेत लोक आहेत, विधानसभेत लोक आहेत, अशांची भाषा साधारणतः मी सर ये पूछना चाहता हूँ, आप जो कह रहे हैं कि जो मेन इन्वेस्टिगेशन है उससे डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, इस तरह के एलिगेशंस लगा के, सर ये परमवीर किसके बेहद पे करते हैं? मैं जानता नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं। दैट्स व्हाई आई विल नॉट टेक एनी वाइल्ड एलिगेशन अनलेस आई गॉट समथिंग। सर, आपने जो हॉस्पिटल में एडमिट होने की बात बताई, लेकिन 15 तारीख को उन्हें फिट टू फ्लाई का सर्टिफिकेट जो है हॉस्पिटल की तरफ से मिल गया था। तो क्या इस बात के लिए भी आप श्योर हैं कि 16 तारीख के बाद भी उनकी मुलाकात नहीं हुई है? क्या आपकी बात हुई? मुलाकात हुई क्या नहीं ये मैं जानता नहीं हूँ, मगर जो कुछ एलिगेशन थे उसका समय और फैक्चुअल स्थिति में फर्क है। अब दूसरी बात ये है कि मेन इशू दूसरा है, मेन इशू ये नहीं है। मेन इशू अंबानी के वकान के सामने कुछ बातें रखी गई, इसमें इन्वॉल्व होने वाले कौन लोग थे, ये किसकी साजिश थी, ये मेन इशू है। ये मेन इशू में ऐसे कुछ नाम आ रहे हैं कि जिसकी डिटेल इंक्वायरी होने की आवश्यकता है। आप लोगों ने, आप टेलीविज़न ने ये दिखाई कि वो जीप से कौन उतरता है, कौन जाता है, कौन बैठता है, किसने गाड़ी, जीप से जाने के बाद कौन से गाड़ी से गए, वो इनोवा किसकी थी, ये सब बातें आप लोगों ने दिखाई। मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, और ये सब देखने के बाद डेफिनेटली मेन इन्वेस्टिगेशन एटीएस कर रही है। शायद जो इनको पसंद नहीं वो लोग डाइवर्ट करने की कुछ कोशिश करें, इस तरह की आशंका पैदा हो सकती है। क्या आपका कहना ऐसा है परमवीर सिंह के तरफ ये पूरी जांच जो है परमवीर सिंह के तरफ जा रही थी, इसलिए परमवीर सिंह ने ये किया, आपका कहना ऐसा है? मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है किसी इंडिविजुअल। Don't you think that it should be proved properly? At least till the investigation is on, sir, should he be stepping down? Don't you think that it should be Who proved? is DCP? Sir, DGP rank officer. CP sir, CP. Senior officer has level delegation. Basically, efforts I said is to divert one serious case, and I don't want that case has to be diverted. सर परमवीर जी ने बोला है, I wrote the letter because Parambir has reacted today saying I wrote the letter because I was hurt. I have not met any BJP leader. I have not gone to meet. There is no politics about it. And the question should be answered. Where didn't Anil Deshmukh meet Sachin Waze many times? Basically, I don't know about what he said, but what he said because I told that he met me. I not say about others. I not say whether he met anyone in Delhi or anything. पवार सर, अभी एक अमित मालवीय ने ट्वीट किया है जिसमें कहा है कि 15 फरवरी को अनिल देशमुख 15 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने के बाद अमित मालवीय ने ट्वीट किया है कि 15 फरवरी को अनिल देशमुख एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वीडियो भी साझा किया। 15 फरवरी को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो आप सब कह रहे हैं कि वो नहीं थे, आप कह रहे हैं वो घर में थे। आपने अभी डेट दिया सर 15 से 27। You said it was under home quarantine, sir. सर आप देखिए, अनिल खुद ही शाम के 4 बजे का उनका अपना ट्वीट है। सर देखिए ना, ये अनिल देशमुख का खुद का सर,
ट्वीट है सर। 15 फरवरी का ट्वीट है सर, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मेरे पास Do you want to see it? I'll show it to you. This is Anil Deshmukh's Twitter page. Sir, this is Anil Deshmukh's Twitter page. That's fine, sir. Here is the press conference and here people detail. अच्छा, I was told this is a video conferencing press statement. What statement? VC से किया है। ये देखो घर पे खड़े बैठे में आदमी घर में बैठता है। सर आईडी, सर माइक आईडी लगेगी इसमें। सर माइक आईडी चाहिए सर, से लग रहा है कि सामने ये VC की बात है जो बताया आपके सामने बताया, इसके कुछ कहना नहीं। ये बात है कि ये इनके घर के सामने जो बात हुई थी, एक जिसकी हत्या हुई वो 2, इसकी हत्या को कौन जिम्मेदार है वो 3। ये सीरियस बात आप छोड़कर आप डाइवर्ट कर रहे हैं, ये बात ठीक नहीं। इसका सर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे बाला साहब थोराट और अशोक चौहान। उन्होंने कहा बहुत सारे ऑल्टरनेटिव हैं, लेकिन इस्तीफा भी एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है। आपकी सहयोगी दल का ही ये बयान आया है, जो महाराष्ट्र के इंचार्ज हैं एस के पाटिल, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात बोली है। उन्होंने क्या कहा मुझे मालूम, क्योंकि मुझसे बात नहीं थी। जहाँ तक मुझसे बात हुई जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन, इस पर मैंने कमेंट करना ठीक है, और किसी ने कुछ किया होगा तो इस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा। और सर ऐसा भी कुछ है कि एनसीपी में कुछ पवार सर इस्तीफा दे, ऐसा भी कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं। Sir, I know you came back, you reverted in this press conference, going through all the details. अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्यासाठी संजय राठोड शिवसेनेचा काही दबाव आहे का अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्यासाठी? कारण की संजय राठोड यांचा एकीकडे राजीनामा घेतला जातोय, दुसरीकडे गृहमंत्र्यांवर एवढ्या गंभीर स्वरूपाचे आरोप होत असताना गृहमंत्र्यांचा राजीनामा का घेतला जाऊ नये अशी देखील ऐसा क्या नहीं प्रेशर और देखकर कुछ नहीं चाहिए। रहने दो, मैं तो फ्री हो जाऊंगा। Sir, nobody is questioning whatever documents you have. Do you think that Anil Deshmukh kept you in the dark giving these documents while he is doing a press conference on 15th February with lots of mics, like we might have, like journalists might have come, na sir? होता है ना, हम मेरे पास कई बार हमारी कॉन्फ्रेंस होती है, प्राइम मिनिस्टर के साथ कॉन्फ्रेंस होती है, अकेले नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऐसे और पार्टी के नेता होते हैं। मैं मुंबई से बात करता हूँ, एक इलाहाबाद से बात करता है, एक लखनऊ से बात करता है। ये सिस्टम आजकल है, तो तब तो वो परमवीर से भी मिल सकते थे ना सर, तब तो वो परमवीर से भी मिल सकते थे, सचिन वाजे से भी मिल सकते थे। ही कुड हैव मेट द केस पीपल। जब वो मीडिया से मिल सकते हैं तो फिर 15 फरवरी को जो परमवीर जी कह रहे हैं सही भी हो सकता है ना सर, कि मिड फेब में मुलाकात किया। हाँ, वो थोड़ा क्लियर कर दीजिए सर, क्लियर नहीं है क्यों? जी जी सर। चलो ही जो हमारी सरकार है वो अनिल देशमुख को क्या क्लीन चिट देने के लिए जल्दबाजी कर रहा है? सर ये लग रहा है, सवाल भी उठ रहा है कि जो महाविकास आघाड़ी सरकार है वो अनिल देशमुख को क्लीन चिट देने में जल्दबाजी क्यों कर रहा है? सर यू आर सेइंग कि हम लोग को कोई जरूरत नहीं है प्रूफ की, ऐसी कोई खास जरूरत लगती नहीं है। मैंने कहा कि अभी जो हमारे सामने जो इंफॉर्मेशन आई है, इससे ये बात दिखाई देती है कि मेन इशू को डाइवर्ट करने की साजिश। पवार सर, तमाम लोगों ने पूछा, जैसे आप ब्रीफिंग कर रहे हैं उसी तरह अनिल देशमुख का ब्रीफिंग है, तो आप जिस आधार पे उनको क्लीन चिट देने की बात करें, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो आधार है वो गलत है? क्योंकि उनके मैंने इतना कहा कि उस समय वो हॉस्पिटल में थे
ऐसा मेरे पास डॉक्यूमेंट है, ये बात मैंने आपको कही। वीडियो आ गया है कि 15 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस तरह की बात सामने आ रही है, थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ सस्पिशन है, तो क्या आपको नहीं लगता इसको इन्वेस्टिगेट कर लेना चाहिए? मैंने ये कहा था कि भाई सीएम साहब की अथॉरिटी है, सीएम साहब इसमें जो कुछ कर सकते हैं, आवश्यकता उनकी रखती है वो कर सकते हैं। सर इसी में एक और सवाल ये है मैंने कल भी कहा था और आज भी कहता हूँ। सर इसी में सवाल है, एनसीपी का क्या स्टैंड है? एनसीपी चाहती है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए अनिल देशमुख और परमवीर वाले मामले में। बात एनसीपी के प्रेसिडेंट के सामने ये कागजात आने के बाद इसमें जो एलिगेशन हो रही है ये क्लियर हो नहीं रही। ऐसी परिस्थिति में खाली किसी ने तो एलिगेशन किए। अच्छा, एलिगेशन किसने किए? जिसके खिलाफ कुछ न कुछ कदम उठाए गए थे और इससे नाराज़गी हो रही थी, ऐसे लोगों ने एलिगेशन किए थे। इस बारे में जो कुछ गवर्नमेंट को करना, अल्टीमेटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो फाइनल अथॉरिटी, चीफ मिनिस्टर जो फाइनल अथॉरिटी, दे गॉट एवरी राइट टू वेदर दे वांट टू इंक्वायर देयर ऑफिसर, देयर मिनिस्टर or there any other colleague. We have no objection. We will not come in that issue. देशमुख प्रकरणासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांची आणि तुमची काही फोनवर संवाद झालेला आहे का सर? I had to talk with him. Just we are not nothing. सर कालच्या बैठकीत काय झालं? काल अजित पवार, जयंत पाटील या ठिकाणी आले होते, संजय राऊतही तुम्हाला भेटले, प्रफुल्ल पटेलही भेटले. काय नेमकं झालं होतं कालच्या बैठकीत? नेमकं कुठल्या विषयावर चर्चा झाली? कालच्या बैठकीत पंढरपूरला कोण उमेदवार उभा करायचा याची चर्चा झाली. आज बसून तो कॅन्डिडेट तिथं बाय इलेक्शन आहे, त्या बाय इलेक्शनच्या संबंधीची पुढची पावलं होती. काही कॅम्पेनच्या दृष्टीने आणखी काय करायची आवश्यकता आहे? पण प्रदेशाध्यक्षांकडनं राज्यातल्या परिस्थितीचा आढावा घेतला नाही तुम्ही? राज्यात आपल्याबद्दल काय मत आहे याचा आढावा प्रदेशाध्यक्षांकडनं घेतला नाही का कालच्या बैठकीत या प्रकरणाचा? नाही, मला काय त्याच्यात आवश्यकता नाही. सर एक और जानकारी आई है हम लोग के चैनल में अभी परमवीर सिंह को लेकर कल आपने कहा था कि 100 करोड़ के कलेक्शन का जिक्र नहीं है, कल आपने जो प्रेस ब्रीफिंग की थी, लेकिन अभी परमवीर सिंह के हवाले से ही एक जानकारी आ रही है, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड नहीं बोला है। उनका कहना है कि जब पैसे के बारे में पूछा जाएगा तब उसकी जानकारी वो जरूर देंगे 100 करोड़ के बारे में। ठीक है, इसमें जो लेटर है उनका खुद 100 करोड़ की बात है। जी जी, आपने कहा था कि कलेक्शन का जिक्र नहीं, उन्होंने कहा है। नहीं, एक जगह पर उन्होंने कहा था 50, यानी उन्होंने मीडिया ने 100 किया है उल्लेख कर, अभी देखा ठीक तरह से है तो इसमें 100 का उल्लेख है। Thank you. Thank you, sir, for answering all the questions. Thank you.